Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Way to Learn. I am Shailja Tripathi and I have started math series for class 10 board exams. So today's topic is quadratic equation. So let's get started and start practicing for our exams. Okay, first we'll see let's do a quick revision. So what is quadratic equation? So quadratic equation is the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. This form of equation is called quadratic equation and it is a polynomial of second degree. Polynomial of second degree means the highest power is 2. So in equation, if you get highest power 2, that is a second degree polynomial. So when we put a equal sign equal to 0, this is called quadratic equation. A, B and C, these are the coefficients or constants. See, A is coefficient of x square, B is coefficient of x and C is a constant value and x is variable. So here A, B and C are constant and x represents the variable. In quadratic equation, we always get two solutions. So this yields two solutions that are known as roots or solution. So while solving this quadratic equation, you will always get two solutions. See, so these solutions are called roots of the roots or solution. See, while solving polynomials, you especially while we are dealing with polynomial of the degree 2, that is quadratic, we get two values for the x and they are called uh, zeros of the polynomial. But when we solve quadratic equation, so same zeros of the polynomial are termed as roots of the roots or solutions of quadratic equation. This is the difference. Zeros of the polynomial is same as root of quadratic equation. So this must be clear. See, for solving quadratic equation, we often use factorization method, that is splitting middle term, that we'll see it now. And one of the important formula is this quadratic formula. See, so here what we get, x formula you must remember, minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So this is called quadratic formula and this also we'll use. See this term here, b square minus 4ac, this is called discriminant. So b square minus 4ac is represented by capital D and it is called discriminant. And this discriminant helps us to decide what type of solution we are or roots we are getting. If the value is equal to 0, we get real and equal roots. If the value is less than 0, that is no real roots, we do not obtain solution. If the value is greater than 0, then we get real and unequal solutions. See, this part, basically rational or irrational, this may not be asked. So you must be clear that if the value is greater than 0, so you get two solutions which are real and unequal in nature. Another important point that must be taken here is that roots are represented by alpha and
beta. And this alpha and beta has relationship with the coefficients. So the sum of the roots will be minus b by a and product of the roots will be c by a. So these are few formulas that must be clear. Okay. See, I'll explain it here. See, if you have this equation ax square plus bx plus c. So these are the coefficients a, b, c and the roots alpha plus beta. This relationship becomes equal to minus b by a. So this minus is part of the formula. And alpha product of the roots is equal to c by a. So this is also very useful relationship that will help you to solve questions. Okay, let's get started with the questions. See, this is one of the quadratic equations and we have to find the value of x. So let's write it down here. 3x square plus 5 root 5x minus 10. See, in this question, let's solve this question. To solve this question, first we multiply 3 by 10. So we get 30. तो ये जो काम आप करोगे इधर रफ वर्क में कर लेना because we have to find factors of 30. So we take 5, 3. So हमारे जो factors आ रहे हैं कौन कौन से हैं 2 into 5 into 3 और into 1. ओके अब इन फैक्टर्स की मदद से हमें ये मिडिल टर्म भी ऑब्टेन करना है. सो व्हाट वी कैन डू 3 2 जा 6 एंड 6 और 5 लेते हैं. 5 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 में. तो हमारे जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो एक होगा 6 रूट 5 एंड रूट 5. अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा 30 और इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे हमें हमेशा मिडिल वैल्यू मिलनी चाहिए. तो सी 6 रूट 5 माइनस रूट 5. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है रूट 5 कॉमन निकालेंगे. सो यू आर लेफ्ट विथ 6 माइनस 1 बिकॉज यहाँ पे क्या है इंटू 1. हम 1 जनरली शो नहीं करते हैं बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इस तरह से करेंगे. सो व्हाट वी गेट रूट 5 और यहाँ पे बचेगा सो वी गेट 5 रूट 5. तो रूट वाले क्वेश्चन हमेशा थोड़ा आराम आराम से धीरे समझ के सॉल्व करना चाहिए. डोंट मेक अ रश नहीं तो इसमें मिस्टेक होने का चांस हो सकता है. सो व्हाट यू डू यू फर्स्ट फाइंड द फैक्टर्स. तो हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए हैं. अब हम इनकी मदद से काम कर सकते हैं. ओके सो नाउ वी कैन राइट 3x स्क्वायर प्लस अब 5 रूट 5 को क्या भी लिख सकते हैं 6 रूट 5 माइनस रूट 5 then put a x minus 10. Now the easy part begins. See 3x square plus 6 root 5 x minus root 5x minus 10. अब रीग्रुपिंग कर लेंगे
एंड टेक आउट द कॉमन. सो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 3x. सो वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 2√5. यहां पर भी कॉमन निकाल लेंगे √5 एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 2√5. अब 2√5 क्यों बचा? अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो यहां पे समझ लेते हैं. सी 10 को अगर फैक्टराइज कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 2 into 5 एंड फर्दर √5 into √5. So 5 is written as √5 into 5. तो यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं? √5 निकाल दे रहे हैं. अगर √5 निकाल रहे हैं तो क्या बच रहा है? 2√5 बच रहा है. ठीक है, ओके. अच्छा, वन मोर थिंग, पुट द प्लस साइन हियर, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, ब्रैकेट पुट कर रहे हैं और ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो बी कॉशियस कि आपको साइन भी चेंज करना है. और चेक करने के लिए कि हमारा क्या सोल्यूशन करेक्ट आ रहा है, तो ऑलवेज सी दैट दीज टू ब्रैकेट शुड बी सेम. अगर ये सेम है दैट मीन्स आपका जो वर्किंग है बिल्कुल करेक्ट है. सो राइट x प्लस 2√5 एंड 3x माइनस √5. ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है. सो ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हमारा ये सब कुछ वैल्यू किसके बराबर है? 0. तो अगर यहाँ पे 0 है मींस इधर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0. दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है. तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? x प्लस 2√5, इधर दिस इज 0 और दूसरा सोल्यूशन कैसे निकलेगा? राइट, 3x माइनस √5 इज 0. दोनों में से कोई एक 0 होगा. सो one of the solution will be minus 2√5 and another solution will be √5. So x is equal to √5 by 3. So these are the two values of x. अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमें डिफरेंट मिल रही हैं. सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमें बता देगा कि वैल्यूज रखोगे तो भी पता चल जाएगा कि जो हमें x की वैल्यूज मिल रही हैं वो अनइक्वल है एंड बोथ द रूट्स आर डिफरेंट. नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओके सी ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. √3x square minus 2√2x minus 2√3. अगेन पहला स्टेप होगा मल्टीप्लाई करना. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विथ दिस टर्म. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2√3 into √3. So what you get? 2 into 3, that is 6. अब 6 हमको 6 के फैक्टर्स बनाने हैं so that we get this middle term also. तो 6 को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो यहां से भी कुछ क्लू मिल रहा है क्योंकि मिडिल टर्म हमारा √2 है. So what we can do? Break this 2 into √2 into √2 into 3 into 1. ओके, अब कुछ इजी हो गया. 3√2 एंड √2. सी अगर हम ये फैक्टर लेते हैं 3√2 एंड √2 into 1. ओके, इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? √2 बाहर आ जाएगा कॉमन एंड वी गेट 3 minus 1. सो वी गेट द मिडिल टर्म. हमें मिडिल टर्म मिल गया. तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा वर्किंग कैसे करनी है विद दी
when you are given question in the root form. See, now you have root 3 x square माइनस, यहाँ पे हमने क्या लिया था 3 रूट 2 माइनस रूट 2. अगर रूट 2 के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी है मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1. x माइनस 2 रूट 3. नाउ लेट्स सॉल्व. रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x. नाउ बी केयरफुल, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा. यू गेट रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 3. लेट्स डू रीग्रुपिंग. ग्रुप्स बना लेंगे. नाउ सी व्हाट इज कॉमन. रूट 3 एक्स कॉमन है and we get x minus root 3 into 2. So what we get root 3x x minus root 6. इधर भी कुछ कॉमन निकालते हैं. ओके, सो रूट 2 कॉमन निकलेगा. रूट 2 and we are left with x minus root 3 into root 2. See, x minus again root 6. तो हमें कॉमन ब्रैकेट्स मिल रहे हैं x माइनस रूट 6, यानी हमारा सोल्यूशन अब तक सही हो रहा है. सो we get two brackets x minus root 6 and root 3x plus root 2. Again let's find the value of x. अच्छा, यहाँ पे equal to 0 जरूर लगाना है सब जगह क्योंकि ये quadratic equation है. Okay, so to find the value of x we'll write x minus root 6 is equal to 0 or root 3x plus root 2 is equal to 0. Now let's find the value of x. X is equal to root 6 or root 3x is equal to minus root 2 or x is equal to minus root 2 by root 3. ओके, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं और माइनस रूट का साइन कॉमन रखते हैं एंड वी राइट 2 by 3. So this is our answer. Now let's take another question. Okay. So this is our question. See, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है. तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन पहले मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रही हूँ. 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सी, अब हम यहाँ पे ना आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंड विल मल्टीप्लाई 4 बाय दिस माइनस 2b होल स्क्वायर. यही हमारे दो फैक्टर्स हैं. ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे. 2a प्लस 2b एंड 2a माइनस 2b.
सो दीज आर द फैक्टर्स, और इनकी मदद से हमें 4b क्रिएट करना है, यानी मिडिल टर्म हमको बनाना है। तो लेट्स सी कैसे हो सकता है। सी 2a प्लस 2b एंड 2a माइनस 2b, अगर हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो व्हाट वी गेट, साइन चेंज करेंगे, चला गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 4b। सो दिस वे वी फाइंड द फैक्टर्स। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट इट कैन बी सॉल्व्ड इन दिस मैनर। ओके, 2a प्लस 2b, अब फैक्टर्स अब हम रखेंगे। सी now it can be written as 4x square plus 2a plus 2b minus 2a minus 2b x minus a square minus b square. Okay, so we get 4x square plus see 2a plus 2bx minus 2a minus 2bx minus a square minus b square. ओके, थोड़ा क्वेश्चन लंबा भी जा रहा है, और ऐसा क्वेश्चन जनरली हमें सेक्शन डी में मिल जाता है। तो नाउ लेट्स डू रीग्रुपिंग। ओके, कॉमन निकल आएगा। सी व्हाट वी हैव, 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2bx। सो कॉमन क्या निकलेगा, 2x। सो वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 2a प्लस 2b। यहां पे देखते हैं अगेन what we have, 2a minus b x माइनस, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्दर ब्रेक करेंगे, a प्लस b एंड a माइनस b। अगेन कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा a माइनस b। सो वी गेट a माइनस b, कॉमन बाहर निकल आया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2x, रिमेंबर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, वी गेट a प्लस b। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, दैट यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन निकाल दिया है। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 2x प्लस a प्लस b, 2x प्लस a प्लस b। So now our answer will be 2x plus a plus b, ये फैक्टर एक मिल गया, और दूसरा फैक्टर होगा 2x माइनस a माइनस b। ओके, अगेन 2x plus a plus b and we have 2x minus a then plus b. These are two factors that we obtain. Again x की वैल्यू निकाल सकते हैं, again put the equation equal to 0। तो ये सब जगह आपको लिखना पड़ेगा equal to 0। Okay, now to find the value of x, what we'll do,
we can write 2x plus a plus b is equal to 0. तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी. So see 2x is equal to minus a minus b और x is equal to minus a plus b by 2. ये हो गया एक x की वैल्यू. दूसरी वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लेंगे. See now 2x माइनस a प्लस b को 0 के इक्वल रखेंगे. व्हाट वी गेट 2x इज इक्वल टू a माइनस b और x इज इक्वल टू a माइनस b बाय 2. दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ x. सो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और इम्पोर्टेंट भी है, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. तो हमने सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. 4 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी फाइंड द फैक्टर्स एंड बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ द फैक्टर्स वी गेट द टर्म 4b. तो हमें ये मिडिल टर्म 4bx मिल जा रहा है. एंड देन बाय सॉल्विंग जो नॉर्मल मेथड है उससे हमें आंसर मिल जाएगा. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स सी अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये क्वाड्रेटिक के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सी अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जो थर्ड टर्म है ये भी एक क्वाड्रेटिक है, यानी क्वाड्रेटिक के अंदर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहले हम ये थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे. सी फर्स्ट विल सॉल्व दिस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6. तो इसको फर्स्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इससे हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे. लेट्स सॉल्व इट हियर. a स्क्वायर प्लस a माइनस 6. 6 के फैक्टर्स हो गए 3 and 2 and 3 minus 2 is 1. So 3 minus 2 a minus 6. Okay. See a square plus 3a minus 2a minus 6. रीग्रुपिंग कर लेंगे. a कॉमन आ गया. So we get a plus 3. यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे. अगेन a plus 3. So a plus 3 and a minus 2. So अब इस क्वेश्चन में हम ये थर्ड टर्म की जगह इसको फैक्टर्स के फॉर्म में रख देते हैं. See, to solve this question, see x square plus 5x minus a plus 3 and a minus 2. See, क्या इन दोनों से हमें क्या 5 मिल सकता है? तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं. a plus 3 a minus 2. अगर इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सी चेंज द साइन, वी गेट 5. दैट इज बाय सब्सट्रैक्टिंग द फैक्टर्स वी कैन ऑब्टेन 5. तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट में कैसे लिखना है, a प्लस 3 माइनस a minus 2, then put a x, then a minus 3 and a minus 2. Multiply x. तो नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस what we get, a plus 3x minus a minus 2x minus a minus 3 and a minus 2. Again
रीग्रुपिंग करेंगे और कॉमन बाहर निकालेंगे. वी गेट x प्लस a प्लस 3. ओके, बी केयरफुल, यहाँ पे अगेन माइनस का साइन आ रहा है और हमें कॉमन क्या मिल रहा है, a माइनस 2. सी वी आर गेटिंग a minus 2 common. So a minus 2 and we are left with x minus a minus 3. See, a minus 2 then x minus a plus 3. Okay, a minus ओके, यहाँ पे साइन प्लस का आएगा. ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्लस है साइन. ठीक है, एंड अगेन व्हेन वी आर पुटिंग अ ब्रैकेट तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा. सो बी केयरफुल विथ माइनस साइन, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है. सी वंस अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं. सी यहाँ पे हम लोग रीग्रुपिंग जब कर रहे हैं, कॉमन क्या निकाल रहे हैं, a माइनस 2, और हमें एक ब्रैकेट भी प्लेस करना है. तो जब ये बाहर माइनस का साइन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 प्लस हो जाएगा. नाउ इट्स ओके. सी x प्लस a प्लस 3. सो कॉमन ब्रैकेट हो गया x प्लस a प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस a माइनस 2. अगेन इसको एक फैक्टर्स ऑब्टेन होने के बाद वी कैन ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन पुट इट इक्वल टू 0. यहाँ पे मिस्टेक जो हुआ था ब्रैकेट में, ये a प्लस 3 है, थ्रू आउट इट इज a प्लस 3. तो करेक्शन कर लीजिए अगर गलती हो गई है कहीं तो. ओके, नेक्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल डू, x plus a plus 3 is equal to 0. So x is equal to minus a minus 3, or it can be written as x is equal to minus a plus 3. Another value, or see, x minus a plus 2 is equal to 0. So x is equal to a minus 2. So these are two values of x that we obtain. So let's go to next question. Okay. See, roots of the quadratic equation are 5 and minus 2. Then the equation is, so ये MCQ question है और हमें इसको बहुत MCQ को बहुत कम समय में जल्दी सॉल्व करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंस रूट्स आर गिवन, दैट इज अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है -2. सो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना चाहिए. सी ax स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, sum of the roots into x plus product of the roots, product.
और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका क्या है? सी ax² माइनस sx प्लस p। ये इजी वे है लर्न करने का। इसको इस फॉर्म में मेमोराइज करके रखना है, इसको, इस इक्वेशन को, और इसी को हम अप्लाई करेंगे। सी अब यहां पे हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? सी ax² माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब वैल्यूज रख देते हैं। सी ax² माइनस 5 माइनस 2x प्लस 5 इंटू माइनस 2। So you get ax² minus 3 minus 2 is, sorry, 5 minus 2 is 3, and here we get plus minus 10. So our final equation is ax² minus 3x minus 10. So option number B is correct. So this one is correct option. So basically यहाँ पे जो याद रखना है वो ये वाला फॉर्मूला है। अगर ये याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। Now let's go to another question. Okay. See, question क्या है? Find the value of alpha for the given equation having equal roots. Okay. तो यहाँ हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो उसकी वैल्यू 0 होगी। सो इस क्वेश्चन में पहले हम अपना ए, बी और सी डिसाइड करके लिख लेंगे। तो ए हमारा क्या हो गया? ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस 12, बी इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा माइनस 12 एंड सी इज इक्वल टू 2। ये हमारा ए, बी और सी कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में हो गए हैं। ओके, सिंस द रूट्स आर इक्वल, तो यहां हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है? b² माइनस 4ac। इक्वल रूट्स के लिए वैल्यू किसके बराबर होती है? 0। तो बस पुट करते हैं। सी b इज ट्वाइस अल्फा माइनस 12। अब स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर में पूरा इंक्लूडेड होगा। गलती क्या करते हैं बच्चे? अल्फा माइनस ऐसे कर दे, ये देखिए, ये नहीं करना है। अल्फा माइनस 12 यू पुट अ स्क्वायर हियर। तो ठीक है, इस ब्रैकेट को तो स्क्वायर कर रहे हैं, बट दिस 2 इज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर करें मीन्स ये पूरा टर्म स्क्वायर होगा। सो ये भी एक सिली मिस्टेक है जो जनरली जल्दीबाजी में हो जाती है, और व्हेन यू आर वर्किंग अंडर प्रेशर तो ये मिस्टेक्स होती रहती हैं। सो बी केयरफुल। माइनस 4, a is alpha minus 12 into 2 and this is equal to 0। चले अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 देन अल्फा माइनस 12 होल स्क्वायर। अब यहां पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे। 4 2 8 अल्फा माइनस 12 is equal to 0. So let's see, 4
a square minus twice ab, that is 24 alpha, plus b square, that is 144, minus 8 alpha minus minus plus, then 12 8 is 96. So what we get, 4 alpha square minus 96 alpha plus 576 minus 8 alpha plus 96 is equal to 0. So what we get, 4 alpha square, and we have to find the value of alpha, और यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 14 104 अल्फा प्लस 6 to the 12 1 672 is equal to 0. अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. अब इसे हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 4. तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4, फर्दर सॉल्व करेंगे. See, अल्फा स्क्वायर माइनस 168 को फैक्टराइज करेंगे, we'll get two factors 6 14 and 12. इसको आप खुद से भी करके देख सकते हो. So we get 14 plus 12 alpha is equal to 0. Now easy part, minus 14 alpha minus 12 alpha plus 168. Again regrouping करेंगे. So we get common alpha minus 14 minus 12 alpha minus 14 is equal to 0. See, alpha minus 14 and alpha minus 12. Okay, so alpha is equal to, see, alpha minus 14 is equal to 0 or alpha minus 12 is equal to 0. So alpha is either 14 or alpha is equal to 12. अब अगर हम अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखें तो लेट्स सी. See, is it visible? No. See, अल्फा की वैल्यू 14 और 12 आ रही है, 14 एंड 12. लेकिन अगर हम 12 रखते हैं, इफ वी कीप 12 इन द ओरिजिनल इक्वेशन, तो हमारा a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. इसलिए हम अल्फा इज इक्वल टू 12 को इग्नोर करेंगे. दैट इज आंसर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 14 विल बी करेक्ट आंसर. बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट है, यहाँ पे अल्फा माइनस 12, तो अगर अल्फा 12 रख रहे हैं देन वी गेट कोएफिशिएंट 0. तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है उसको क्या कर रहा है, डिफाई कर रहा है. तो हमारा एक्चुअली जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
C is equal to 0 where the condition is A cannot be equal to 0. तो यहां पर भी अगर देख रहे हैं अगर 12 रख रहे हैं तो हमारा A क्या हो जा रहा है 0. Hence the correct answer is alpha is equal to 12. So be careful, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सब कुछ करने के बाद एक बार चेक कर लेना क्या जो वैल्यू रख रहे हैं उसमें A की वैल्यू 0 तो नहीं हो जा रही है हमारे इक्वेशन में. We come to next question. अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे. So see, now it's visible. Okay. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक. तो एक हमने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन लिया है जस्ट फॉर सैंपल से कि इसको चेक अगर करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं. ओके किसी भी इक्वेशन को देख करके नहीं बताना है उसको हमेशा सॉल्व करना पड़ता है. तो अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल क्यूब की. सी आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार. a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू यहीं पे लिखते हो a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b. ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके ओके सो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी यूज करते हैं. सो व्हाट वी गेट a क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3ab दैट इज 3 इंटू x इंटू का साइन नहीं लगाएंगे 3 you put a dot then a dot then x plus 2 is equal to x cube plus 4. now let's see क्या मिल रहा है हमें यहाँ. x cube plus 8 3 2 just 6 x plus 2 is equal to x cube plus 4. Again x cube from both side can be cancelled. So we are left with 8 plus 6x square plus 12 is equal to 4. So 6x square 2 is 12x plus 12x plus 8 minus 4. So what you get 6x square plus 12x minus 4 is equal to 0. This is a quadratic equation of the form. तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे प्रेजेंट करेंगे. Yes, it is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. So अपना आंसर इस तरह प्रेजेंट करना है. फर्स्ट जो गिवन क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे देन you represent your answer in this manner. Now let's come to next question.
वर्ड प्रॉब्लम में भी कैसे हमें वर्क करना है उसे अच्छे से समझते हैं. See, Anshu is X year old while Ashu is X years old while his mother Mrs. Veena is X square years old. 5 years hence Mrs. Veena will be 3 times old as Ashu. Find their present ages. Okay, तो यहाँ पे वर्क करते हैं. Let Ashu's present age be X years. And mother's age present age be X square years. 5 year hence मतलब 5 साल बाद. तो यहाँ पे हम सिचुएशन लिख लेते हैं आफ्टर 5 years. ये इस तरह लिखने से हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाता है. 5 years hence मीन्स 5 साल के बाद आशु की एज क्या होगी? आशु विल बी X plus 5 years and mother will be so 5 year hence Mrs. Veena will be 3 times. तो मदर की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 years? X square plus 5 years. So अब ये 5 years के बाद का सिचुएशन दे रहा है कि 5 years के बाद क्या एज का रिलेशन है. So 5 years hence Mrs. Veena will be 3 times old as Ashu. So इक्वेशन क्या बनेगा? X square plus 5 mother's age will be equal to 3 times the age of her son. Oh God. ठीक है, अब ये इससे हम अपना इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15. So we get x square minus 3x and we get minus 10 is equal to 0. So x square minus अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करेंगे. सो 5 माइनस 2. अब तो क्लियर हो गया है. 5 2s are 10. You get the product here और 5 minus 2 मिडिल टर्म मिल गया है. So we can solve it. X square minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. So regrouping करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे. वी गेट x minus 5 x minus 5 x minus 5 and x plus 2. See, so x is 5 और minus 2. ये दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं. So age can never be in negative. So the present age of Ashu is 5 years. तो हमारा आंसर हो जाएगा that Ashu's present age is equal to 5 years और मदर की प्रेजेंट एज क्या है? That is
x square. So mother's present, okay, लिख ही देते हैं, present age is equal to x square. हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था और क्वेश्चन में भी यही गिवन है, x square, that is 5 into 5, that is 25 years. So this is your answer. Now let's come to next question. Okay. So let's take our next question. Sum of ages of man and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the man's age at that time. Find their present age. Okay. तो यहाँ पे sum of ages of man and son given है. तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? Let present age of man be x years. तो प्रेजेंट एज सन की कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x. सो प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी 45 माइनस x years. क्योंकि सन यहां पे हमें क्या मेंशन किया है? एजेस ऑफ सन एंड मैन 45 है. तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये डाटा मिल रहा है. 5 years ago यानी 5 साल पहले की बात है. तो फिर से अगर हमें सिचुएशन लिखना है, सो यू राइट द सिचुएशन 5 years ago. 5 साल पहले मैन की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5 years. मैन विल बी x माइनस 5 और सन क्या हो जाएगा? See 45 minus x, again minus 5. So the age of son will be 40 minus x years. Okay, इस इंफॉर्मेशन के साथ फर्दर हमें क्या मिल रहा है? The product of their ages was 4 times the man's age at that time.
तो हमारे को मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ मैन एंड सन। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, x minus 5 and 40 minus x is equal to man's age at that time, that is 5 years ago, that is x minus 5। अब इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक क्रिएट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन विल सॉल्व इट। सी व्हाट यू गेट, 40x minus x square minus 200 plus 5x is equal to x minus 5 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 4x and here 40x, so it will be 44x and minus 195. So this is our equation. सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 टाइम्स है, सो हियर वी हैव टू पुट 4। 40x minus x square minus 200 plus 5x is equal to 4x minus 20। आगे जो फैक्टराइज करके सॉल्व करना है वो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, देन यू मैच द आंसर, तो ज्यादा अच्छा होगा। सी व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 36x minus 5x plus 180 is equal to 0। अगेन रीग्रुपिंग करेंगे, सो व्हाट यू गेट, x कॉमन आ गया, x माइनस 36 अगेन x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस का जब भी माइनस हो तो कॉशियस रहना है, अगेन ब्रैकेट पुट किया है तो साइन भी चेंज होगा। सो व्हाट वी गेट, x माइनस 36 and x minus 5। So we get two values of x. X is equal to 36 or x is equal to 5। See, man's age 5 years तो हो नहीं सकती है, ठीक है, तो man's age will take it 36। So man's age is equal to 36 years and son's age will be 45 minus 36, that is 5 years, sorry 9 years is equal to 9 years। So this is your answer, man is 36 years and son is 9 years। Let's take next question।
Okay. So our next question is product of Shikha's age 5 years ago and her age 8 years later is 30. So her age at both times is given in years. Find her present age. Again, see Shikha's age 5 years ago. तो हम present age से हमेशा start करते हैं. So let present age be x years. प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना हमेशा इजी होता है. सो प्रोडक्ट ऑफ एज 5 years ago. सो 5 years ago she was x minus 5 years. 8 years later. So again statement बनाओ. 8 years later she will be x plus 8 years. अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द एजेस गिवन एजेस इज 30. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 5 x प्लस 8 प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज इक्वल टू 30. अब इससे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करेंगे. तो लेट्स सी. एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x minus 40 is equal to 30. So what we get? X square plus 3x minus 70 is equal to 0. So middle term splitting करेंगे. X square ten minus 7 x minus 70 is equal to 0. So we get x square plus 10x minus 7x minus 70 is equal to 0. Again do the regrouping. x कॉमन निकाल लेंगे. तो वी गेट x प्लस 10. यहां से 7 कॉमन निकालेंगे. यार अगेन x प्लस 10. बी केयरफुल. साइन नेगेटिव का है तो ब्रैकेट पुट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा. सो व्हाट वी गेट? x प्लस 10 एंड x minus 7. So x is equal to minus 10 or 7. So age cannot be negative. So the her present age is 7 years. So answer is 7 years. So यहाँ पे आप बना लो आंसर. Present age of Shikha is 7 years. Okay. Now let's come to another word problem.
सी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है। बेसिकली इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम मीन्स वी आर मूविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर एंड डाउनस्ट्रीम मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स द और इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो अपस्ट्रीम मतलब against the flow of the river and downstream means in same flow or in the same direction as the river is flowing। तो जब भी हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड ऑफ बोट जो है घट जाती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, एंड डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है, दैट इज स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगी बिकॉज बोथ आर फ्लोइंग इन दी सेम डायरेक्शन। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन एंड इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जो भी फाइंड करना है उसको हम लेट मान के लेट एक्स मान लेंगे। सो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। सो लेट x kilometer per hour। Okay, now speed of both upstream and downstream दोनों लिखना पड़ेगा हमें। तो स्पीड ऐसे लिख लेते हैं, अपस्ट्रीम will be 8 minus x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो बोट की स्पीड डिक्रीज होगी, एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में स्पीड बोट की इंक्रीज हो जाती है। तो 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां पे हमें याद रखना है कि बोट की स्पीड या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो अपस्ट्रीम में डिक्रीज हो रही है स्पीड तो माइनस एक्स, डाउनस्ट्रीम में इंक्रीज हो रही है तो प्लस एक्स। ओके, बहुत से बच्चों ने गलती ये भी की है कि यहाँ पे अपस्ट्रीम में x minus 8 लिख दिया है। अगेन दिस इज अ कॉमन मिस्टेक विच यू ऑफन मेक। तो हमें याद रखना है किसकी स्पीड घट रही है, बोट की। तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी। अगर ये सिचुएशन है इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है तो बोट मूव ही नहीं कर पाएगी या अपोजिट डायरेक्शन में जाती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है तो बोट आगे मूव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन नहीं लेनी है। तो इसको इस कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने का बस एक ही तरीका है कि आप क्या करना है, इस बोट की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम में घट रही है और डाउनस्ट्रीम में बढ़ रही है, बस इस फॉर्मेट को लेके चलना है। ओके, सो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, ठीक है, उसके लिए मैं शॉर्ट में अप लिख दे रही हूँ। एंड टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, टोटल टाइम 5 hours गिवन है। तो टाइम आप यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हो, बट मैं जानबूझ के अप और डाउन लिख रहे हैं जिससे कि क्लियर हो, आपको कंसेप्ट बन जाए। सो टाइम, टोटल टाइम टू गो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 5 hours। ओके, सी अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो टाइम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 15 एंड स्पीड क्या है 8 minus x। सो यहां पे कुछ नहीं किया है, टाइम का फॉर्मूला लगा है स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
Downstream 22 kilometer, then again distance upon speed is equal to 5. अब इसको सॉल्व करेंगे by taking LCM. See, 8 minus x, 8 plus x. So here you get 15, 8 plus x plus 22, 8 minus x is equal to 5. Now let's solve it. 40. 120 plus 15x plus 176 minus 22x. ऊपर का न्यूमरेटर पहले सॉल्व कर लेते हैं और नीचे इसको कन्वर्ट कर देते हैं a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So here we get 64 minus x square is equal to 5. Let's see what we get. 22 minus 22 and plus 15. 7. See, what you get here is minus 7x plus 6, 7, 8, 9, 296 is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हियर यू गेट 64 minus x square. Minus 7x plus 296. Okay. So 5x को इस साइड भेज सकते हैं. So what you get, 5x square minus 7x minus 320 plus 296. So हमारा इक्वेशन बना 5x square minus 7x minus 24. This is the quadratic equation that you get. Okay. अब इसको सॉल्व करेंगे. Let's solve it here. See, 24 minus 15 minus 8x minus 24 is equal to 0. So 5x square minus 15x plus 8x minus 24 is equal to 0. अब regrouping कर लेंगे. So we take out common 5x, we are left with x minus 3, x minus 3. So x minus 3, 5x plus 8 is equal to 0. So speed of boat is 3 or you get minus 8 by 5. तो स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकता है. सो स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था हमें. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम
is equal to 3 kilometer per hour. So this is our answer. Hope you understood the topic well. Keep practicing and I'll bring more series to help you. Thank you so much. Please like, share and subscribe.